امی ہمیں بھوک لگی ہے، واپس آ جائے۔ یتیم بچیوں کی فریاد۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو جھلی ہوئی تھی، سورج ڈھلنے کو تھا اور شام کی مدھم روشنی قبرستان پر پھیل چکی تھی۔ دو ننھی بچیاں، ایک سرخ اور ایک بنفشی کپڑوں میں، قبر کے قریب بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں سوکھی روٹی کے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ زمین کی ٹھنڈک ان کے پاؤں میں اتر رہی تھی، مگر وہ ہلی بھی نہیں۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دور کہیں سے آتی ہوا کے ساتھ پتے ہلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک بچی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، امی ہمیں بھوک لگی ہے، اب واپس کیوں نہیں آتی؟ دوسری نے روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے مٹی صاف کی، امی ہم نے روٹی بچا رکھی ہے، اب کے لیے بھی ٹکڑا رکھا ہے۔ ان کی نظریں قبر کی مٹی پر جمی رہے، ایسا لگا جیسے وہ انتظار کر رہی ہوں کہ مٹی ہلے اور ان کی ماں وہاں سے اٹھ کر انہیں سینے سے لگا لے۔ ہوا ذرا تیز ہوئی، قبر کے قریب رکھا ہوا ایک روٹی کا ٹکڑا اڑ کر دور جا گرا۔ بچیاں چونک گئیں، ایک نے جلدی سے ہاتھ پڑایا مگر ٹکڑا مٹی میں لتڑ گیا۔ اس کے ہونٹ کپ کپائی۔ امی ناراض ہیں شاید، اس نے آہستہ سے کہا۔ دوسری نے سسکی روکی اور قبر کے پاس چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ کر مٹی میں جذب ہو گیا۔ فضا میں عجیب سی سرسراہٹ ابھری، پتے ہلنے لگے، ایک سایہ سا قبر کے سرہانے نمودار ہوا۔ دونوں بچیاں ساکت ہو گئیں، ان کے دلوں کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ ہوا تھم گئی، مٹی پر جیسے کسی کے قدموں کی ہلکی چاپ پئی۔ ایک بچی نے کانپتے ہوئے کہا، امی کیا وہ اب ہیں؟ سایہ تھوڑا قریب آیا، چہرہ دھندلا تھا مگر اس کی حرکت ماں جیسی تھی۔ دونوں بچیاں اٹھ کھڑی ہوئی، ان کے چہروں پر خوف اور امید ایک ساتھ جھلکنے لگے۔ ہوا پھر تیز ہوئی اور مٹی کا بگولا ان کے گرد گھومنے لگا۔ سا غائب ہو گیا۔ ایک چیخ فضا میں گونج اٹھی، زمین جیسے ایک لمحے کے لیے کانپی۔ دور کہیں کتے بھونکنے لگے۔ چھوٹی بچی نے کانپتے ہوئے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا، امی ناراض نہیں ہے نا؟ وہ واپس آئے گی نا؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک انکہی دعا جل رہی تھی۔ قبر کے قریب مٹی ہلکی سی پھڑکی، دونوں نے سانس روک لیا، ان کے چہروں پر آنسوؤں کی لکیریں اور مٹی میں بھیگی ہوئی روٹی خاموش گواہی دے رہی تھی کہ انتظار ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہوا میں اچانک ایک سرد جھونکا آیا، قبر کے اوپر رکھی مٹی ہلکی سی اڑ کر فضا میں گھومنے لگی۔ دونوں بچیاں چونک کر پیچھے ہٹ گئیں مگر نظریں قبر سے ہٹانے کی ہمت نہ کر سکے۔ ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ سورج پوری طرح ڈوب چکا تھا اور مغرب کی لالی اب سیاہی میں بدل رہی تھی۔ قبرستان کی خاموشی اب باری ہو چکی تھی۔ دور کہیں الو کی آواز گونجی اور اہاڑیوں میں کوئی جانور سرسراہا۔ چھوٹی بچی مریم کپکپاتے ہوئے بولی، فاطمہ امی ہم سے ناراض نہیں ہیں نا؟ فاطمہ نے کچھ کہنا چاہا مگر گلا بھاری ہو گیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، امی کبھی ناراض نہیں ہوتی، وہ بس سو گئی ہیں۔ لیکن دل میں عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ اس کے کانوں میں وہ آخری دن کی آوازیں گونجنے لگے، امی کی کھانسی، سانسوں کی تیزی اور ان کا کمزور ہاتھ جو بار بار بچیوں کے سر پر پھرتا رہا۔ فاطمہ کے ذہن میں وہ لمحہ پھر زندہ ہو گیا جب امی نے آخری بار کہا تھا، اگر میں نہ رہوں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ مریم نے قبر پر ہاتھ رکھا، امی میں نے اب کی بات مانی لیکن بھوک بہت لگتی ہے۔ اب کہا کرتی تھی اللہ رزق دیتا ہے، مگر آج کوئی دروازہ نہیں کھلا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ہوا کہ اینکوں میں کچھ سرگوشیاں تھیں جیسے کوئی جواب دینا چاہتا ہو۔ قریب کے درختوں کی شاخیں ہلنے لگے۔ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل گہرے ہو چکے تھے اور چاند بادلوں کے پیچھے چھپنے لگا۔ اچانک دور سے روشنی کی ایک لکیر دکھائی دی، کسی کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ دونوں بہنیں خوف زدہ ہو کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں۔ روشنی آہستہ آہستہ قریب آنے لگی، قدموں کی آواز سنائی دی، نرم مگر بھاری۔ فاطمہ نے اپنی بہن کے کان میں کہا، کسی کو بلاؤ مت، پتہ نہیں کون ہے۔ مریم نے اپنے ننھے ہاتھوں سے قبر کی مٹی مضبوطی سے پکڑ لی۔ روشنی اب بالکل قریب تھی۔ لالٹین اٹھائے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی، چہرے پر جھریا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ مگر آنکھوں میں عجب سا سکون۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، بچیو تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ فاطمہ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، یہ ہماری امی کی قبر ہے، ہم ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ بوڑھی عورت کچھ لمحے خاموش رہی، پھر قبر کے پاس گھٹنے ٹیک دیے۔ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا بیٹیوں، مائیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی، وہ بس نظر نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کپڑے کے اندر سے کچھ نکالا، ایک چھوٹا سا پیتل کا برتن، اندر تھوڑا سا دودھ اور کچھ خشک کھجوریں تھیں۔ مریم کی آنکھوں میں حیرت اور بھوک ایک ساتھ چمک اٹھی۔ کھا لو بیٹیوں، بھوکے پیٹ دعا نہیں پہنچتی۔ فاطمہ نے دھیرے سے کھجور اٹھائی مگر ہاتھ لرز رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، میں بھی ایک ماں ہوں اور شاید تمہاری ماں نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ سن کر دونوں بچیاں ساکت ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
हुआ ने फिर सरगोशी की, जैसे मिट्टी के नीचे कोई मुस्कुरा रहा हो। बूढ़ी औरत ने उनके सरों पर हाथ रखा। डर मत, जब माँ चली जाती है तो दुनिया बदल जाती है, लेकिन दुआ की खुशबू रह जाती है। फिर वो लालटेन जमीन पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान के धुंधलकों में गायब हो गई। फातिमा ने पीछे मुड़कर देखा, मगर रोशनी कहीं नहीं थी, सिर्फ वही खामोश कब्र और हवा में फैली मिट्टी की खुशबू। मरियम ने आहिस्ता कहा, फातिमा, क्या वो सच में उम्मी ने भेजी थीं? फातिमा के लडों पर एक हल्की लरसती मुस्कुराहट आई। शायद अल्लाह ने। बारिश की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी। कुछ ही देर में आसमान खिल गया। बारिश ने कब्र की मिट्टी भिगो दी। दोनों बच्चियां भीगती रहे, मगर हिली नहीं। उनके चेहरों पर आंसू और बारिश एक हो गए। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, उम्मी देखे, अब की बेटियां अकेली नहीं हैं। बिजली चमकी, कब्र के करीब जमीन में कुछ चमका। एक छोटा सा चांदी का लाकिट। फातिमा ने हाथ बढ़ाकर उठाया। लाकिट खोला, अंदर एक तस्वीर थी, उम्मी की, और साथ दो नन्ही बच्चियों की, जिनके हाथ उनके दामन में थे। फातिमा के जिस्म से जैसे जान निकल गई। ये यहाँ कैसे आया? मरियम ने लाकिट के अंदर उंगली रखी। उम्मी ने खुद रखा होगा ना, ताका हमें मिल जाए। फातिमा ने लाकिट सीने से लगा लिया। कब्र के करीब अब हवा फिर हल्की हो चुकी थी। मिट्टी की खुशबू में सुकून था, मगर एक अनजानी गहराई भी। दोनों बहनें कब्र के पास ही लेट गईं। उनकी आंखें बंद हो रही थीं। बारिश रुक चुकी थी। दौर से अजान की आवाज आ रही थी, अल्लाह अकबर। फिजा में वो सदा फैलती चली गई। फातिमा ने नीम बंद आंखों से आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों से निकल आया था। इसकी रोशनी कब्र पर पड़ी और मिट्टी के नीचे जैसे कोई रोशनी झलकने लगी। मरियम ने आहिस्ता से कहा, फातिमा देखो, उम्मी हमें देख रही हैं। फातिमा ने सर उठाया। चांदनी में वाकई एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था, मुस्कुराता हुआ, नर्म, जैसे मिट्टी और रोशनी से बना हो। दोनों बच्चियां उठकर बैठ गईं। उनके लब कपकपा रहे थे, मगर चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ सुकून था। हुआ ने एक बार फिर कब्र को छुआ, और किसी ने जैसे उनके कानों में आहिस्ता कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। जमीन खामोश रही, मगर दिलों में एक नया यकीन जाग गया। रात गहरी होती गई, मगर अंधेरे में अब रोशनी थी। दो नन्ही जानें कब्र के पहलू में सुकून से बैठी थीं, माँ के बगैर, मगर माँ के एहसास में डूबी हुई। उनके चेहरों पर आंसू नहीं थे, सिर्फ एक शुक्रगुजारी की चमक थी। मिट्टी के नीचे खामोशी गहरी थी, मगर फिजा में वो नरमी थी जो सिर्फ माँ के लम्स से आती है। चांद आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था, और इसकी चांदनी में कब्र के करीब दो बच्चियां अब साकित बैठी थीं, ऐसे जैसे माँ ने उन्हें अपनी बाहों में छुपा लिया हो। रात और भी गहरी हो चुकी थी। कब्रिस्तान पर फैलती हुई खामोशी में हुआ जैसे रुक सी गई थी। दूर कहीं झींगरों की मध्यम आवाजें आ रही थीं, और कभी कभार कोई पत्ती जमीन पर गिरती तो इसकी हल्की सी आहट सुनाई देती। मरियम ने फातिमा का हाथ मजबूती से थाम रखा था। इसकी उंगलियां ठंडी थीं, जैसे सर्दी हड्डियों में उतर गई हो। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा। चांदनी अब मध्यम हो चुकी थी, और बादल फिर घने होने लगे थे। दोनों बच्चियां कब्र के करीब दायरे में सिमट आए। फातिमा ने आहिस्ता कहा, मरियम, अगर उम्मी सच में हमें देख रही हैं, तो वो अभी मुस्कुरा रही होंगी। मरियम के लबों से हल्की सी हिचकी निकली। लेकिन फातिमा, अगर वो नाराज हो गईं तो? अगर उन्हें पसंद ना आया कि हम यहाँ रात गुजार रहे हैं? फातिमा ने इसके आंसू पोंछे। उम्मी कभी नाराज नहीं होती, बस खामोश हो जाती हैं। हवा में एक सरसराहट सी उभरी। ऐसा लगा जैसे कोई कब्र के आसपास आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मरियम ने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरा घना था, मगर किसी साए की जुम्बिश महसूस हुई। दिलों की धड़कन तेज हो गई। फातिमा ने दबे लहजे में कहा, कोई है यहाँ? जवाब में सिर्फ खामोशी। फिर अचानक एक कच्ची ईंट लुढ़क कर कब्र के करीब आ गिरी। दोनों बच्चियां चीख उठीं और कब्र के दूसरे तरफ सिमट गईं। मरियम ने रोते हुए कहा, ये किया था? कौन है वहां? हवा में एक सर्द झोंका चला, जैसे किसी ने उनके करीब से गुजरते हुए सांस भरी हो। फातिमा ने अपने सीने पर हाथ रखा। उम्मी, अगर ये आप हैं तो हमें बता दे, हम डर गए हैं। फिजा में एक लम्हे को सब कुछ थम गया। फिर कब्र की मिट्टी के अंदर से एक मध्यम सी आवाज उभरी, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई, डर मत, मैं तुम्हारे पास हूं। दोनों बच्चियां पत्थर की तरह साकित हो गईं। उनकी आंखों में खौफ और हैरत एक साथ भर गया। फातिमा ने कान लगाकर सुना। मिट्टी के नीचे वाकई जैसे किसी ने हल्की सांस ली हो। मरियम के होंठ कपकपा रहे थे। फातिमा, ये उम्मी थे? ये वाकई उम्मी की आवाज थी ना? फातिमा ने जवाब ना दिया। आंखों से बहते आंसू कब्र की मिट्टी में जज्ब हो गए। अचानक आसमान पर बिजली चमकी। एक लम्हे के लिए सारा कब्रिस्तान रोशनी से भर गया।
दूर तक कतार में कब्रें चमक उठीं। बारिश की चंद मोटी बूंदें गिरीं, फिर रुक गईं। फिजा में नमकीन मिट्टी की महक फैल गई। फातिमा ने लाकिट सीने से लगाकर आंखें बंद की। उम्मी, हम यहाँ हैं। हमने वदा किया था कि आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता कब्र के गिर्द मिट्टी को सेलाना शुरू किया। मरियम ने कांपते हुए कहा, फातिमा, कुछ महसूस हुआ? ये मिट्टी गर्म हो गई है। फातिमा ने चौंक कर हाथ हटाया। वाकई कब्र के एक हिस्से से हल्की सी गर्मी निकल रही थी, जैसे जमीन के अंदर कोई सांस ले रहा हो। मरियम ने हैरत से देखा। उम्मी, अब जिंदा हैं क्या? हुआ में एक और झोंका चला, और इसके साथ कब्र की मिट्टी का एक जरा उठकर दोनों के चेहरों पर आ गिरा। फिर अचानक फिजा में वही सरगोशी उभरी। मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। दोनों ने एक साथ चीख मारी और कब्र से पीछे हिट गए। मरियम जमीन पर गिर गई। फातिमा ने इसे उठाया। मत डर, शायद ये उम्मी का पैगाम है। वो हमसे बात कर रही हैं। मरियम ने रोते हुए कहा। लेकिन कैसे? उम्मी तो चली गई थीं। फातिमा ने आहिस्ता जवाब दिया। कुछ रिश्ते मिट्टी से मजबूत होते हैं। माँ उनमें सबसे बड़ी दुआ होती है। उनके पीछे से एक चरचराहट की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा। लालटेन, जो इस बूढ़ी औरत ने रखी थी, अब खुद बखुद जल उठी। शोला हल्का सा नीला था, जैसे आम आग नहीं। रोशनी कब्र पर पड़ी तो मिट्टी के अंदर से हल्की सी रोशनी झलकने लगी। दोनों बहनें एक दूसरे के करीब सिमट आए। फातिमा ने कांपते हुए हाथ से लालटेन उठाई। रोशनी तेज हुई और कब्र की मिट्टी में एक धुंधला सा निशान उभरा, 2 छोटे हाथों के बराबर। मरियम ने हैरत से कहा, ये तो जैसे हमने हाथ रखे हों। फातिमा ने सर हिलाया। ये उम्मी की निशानी है। वो चाहती हैं कि हम जाए नहीं। हुआ में अब एक अजीब सा शोर बढ़ने लगा। दौर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आए। दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगे। फातिमा ने अपनी बहन को सीने से लगाया। डर मत, उम्मी हमारे साथ हैं। मरियम की आंखों में आंसू थे। फातिमा, क्या हम उनके पास जा सकते हैं? फातिमा खामोश रही। इसके दिल में एक अनदेखा खौफ था, मगर साथ एक सुकून भी, जैसे सब कुछ खत्म होने वाला हो। इसी लम्हे जमीन हल्की सी कांपी। कब्र की मिट्टी से धुआं सा उठा और फिजा में एक खुशबू फैल गई, वही खुशबू जो उनकी उम्मी के कपड़ों से आती थी। दोनों बहनें हैरत में इस खुशबू को सूंघती रह गईं। मरियम ने कहा, ये तो उम्मी की खुशबू है। फातिमा ने लरसते हुए कहा, हाँ, ये वही है। फिर कब्र के सरहाने पर किसी ने जैसे आहिस्ता आहिस्ता कदम रखे। जमीन पर हल्की चाप सुनाई दी। लालटेन की रोशनी में एक धुंधला सा अक्स उभरा। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर हाथ फैले हुए थे। मरियम ने सिसकी भई, उम्मी। अक्स ने हाथ पाया। हुआ एकदम रुक गई। लालटेन बुझ गई। सिर्फ चांदनी बच्ची, और इसमें 2 नन्ही बच्चियां एक दूसरे के साथ लिपटी हुई। कब्र के पास आंखों में आंसू, मगर चेहरों पर अजीब सा सुकून। उनकी सांसें मध्यम हो रही थीं। दिल की धड़कन आहिस्ता पड़ गई। कब्र के करीब जमीन नर्म हो चुकी थी, और मिट्टी में 2 नन्हे कदमों के निशाना बन गए थे, जो कब्र के सरहाने तक जाते थे और वहां आकर खत्म हो जाते थे। इस रात कब्रिस्तान में किसी ने कुछ नहीं सुना। बस हुआ के साथ एक मध्यम सदा फैलती रही, उम्मी, हमें भूख लगी है, वापस आ जाए। आसमान पर चांद अब पूरी आबोताब से चमक रहा था। रात की खामोशी में सिर्फ हुआ की हल्की सरगोशियां थीं। कब्र के इर्द गिर्द फैली नमी, बारिश की खुशबू और मिट्टी का लम्स, सब कुछ जैसे एक नए आगाज की कहानी सुनाने लगे। फातिमा और मरियम अब कब्र के करीब खामोश बैठी थीं। उनके चेहरों पर आंसुओं के निशान थे, मगर उन आंखों में अब खौफ नहीं, एक अजीब सा सुकून और रोशनी थी। फातिमा ने अपनी बहन के सर पर हाथ फेरा। मरियम, लगता है उम्मी वाकई हमारे साथ हैं। वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ फातिमा, अब दिल हल्का लग रहा है। उम्मी यहाँ हैं, हमारी दुआ के आसपास। हुआ में एक नर्म सी खुशबू फिर घुल गई, जैसे किसी ने मिट्टी पर फूल रख दिए हों। कब्र के एक कोने से हल्की सी रोशनी फूटी, मध्यम मगर इतनी पाकीज़ा के आंखों में चमक भर दे। फातिमा ने हैरत से देखा। रोशनी के बीचों बीच एक फूल उगाया था। किसी ने बोया नहीं था, मगर वो जिंदा था। देखो मरियम, फातिमा ने कांपते लहजे में कहा, उम्मी ने हमारी दुआ सुन ली। ये उनका तोहफा है, निशान मोहब्बत का। दोनों बच्चियां फूल के करीब झक गईं। इसके रंग में जिंदगी की खुशबू थी। मरियम ने फूल को हाथ लगाया, और आंखों से बहता एक आंसू इसकी पत्तियों पर जा गिरा। फूल जैसे और ज्यादा खिल उठा। रोशनी तेज हुई और कब्र के ऊपर एक नर्म सा धुआं उठा, जो रफ्ता रफ्ता हुआ में तहलील होता गया। फातिमा ने लाकिट निकाला। उम्मी की तस्वीर पर वही मुस्कुराहट थी, प्यार भरी, अबदी और तसल्ली देने वाली। उम्मी, हम अब रोते नहीं, वदा करते हैं। हम जिगे आपके प्यार के साथ।
इसी लम्हे कब्रिस्तान के दरवाजे पर चरचराहट हुई। वही बूढ़ी औरत जिसने लालटेन रखी थी, अब हाथ में एक चादर लिए खड़ी थी। बेटियों आओ, रात गहरी हो गई है। उम्मी चाहती हैं तुम घर जाओ। वो चाहती हैं तुम्हारी मुस्कुराहट वापस आए। फातिमा और मरियम ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी। उन्होंने कब्र की मिट्टी को छुआ और आहिस्ता से कहा, उम्मी हम कल फिर आएंगे। आपकी बेटियां अब मजबूत हो गई हैं। हुआ ने नरमी से उनके चेहरों को छुआ, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। मेरी बेटियों अब खुश रहना। बूढ़ी औरत ने उनके सरों पर चादर डाली। लालटेन की रोशनी कब्र के इर्द गिर्द घूमने लगी। चांदनी इसके साथ मिलकर एक खूबसूरत हाला बन गई, जैसे कोई आसमानी रोशनी जमीन पर उतर आई हो। दोनों बच्चियां हाथों में हाथ डाले कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनके पीछे कब्र की मिट्टी से रोशनी की हल्की किरण निकलती गई। फिर सब कुछ धीरे धीरे अंधेरे में मद्धम हो गया, मगर फिजा में एक दाचलिफिय सदा बाकी रही, नर्म पुरसर, जैसे किसी माँ की दुआ आसमान से उतर रही हो। मेरी बच्चियों खुश रहना। मेरी रूह तुम्हारे साथ है। जब भी तुम रोटी तोड़ोगी मैं तुम्हारे पास हूंगी। मरियम के होंठों पर एक खामोश मुस्कुराहट आई। इसने आसमान की तरफ देखा। उम्मी अब हमें भूख नहीं लगती, अपने दिल भर दिया है। फातिमा ने अपनी बहन को गिले से लगा लिया। आओ मरियम घर चलें। उम्मी चाहती हैं हम उनके ख्वाब पूरे करें। और वो दोनों धुंध में गुम होते चली गईं। पीछे रह गया एक कब्र का गोशा, जिस पर चांदनी टूटी हुई थी, और एक छोटा सा फूल जो अब पहले से ज्यादा रोशन था। इस रात के बाद जब भी सुबह की रोशनी कब्रिस्तान पर पड़ती, वो फूल सबसे पहले खिलता। लोग कहते, ये दो यतीम बच्चियों की दुआ का फूल है, जो हर दिन अपनी माँ के लिए खिलता है। वक्त गुजरता गया। फातिमा और मरियम बड़े हो गए। उनके चेहरों पर वही सुकून था जो माँ के लम्स में होता है। वो दूसरों के लिए मुस्कुराहट बांटने लगे, भूखों को खाना देने लगे, यतीमों को माँ की तरह गिले लगाने लगे। और जब कभी रात को चांदनी कब्र पर पड़ती, वो दोनों वहां जाकर बैठती, खामोशी से फूल को देखती और दिल में महसूस करती, उम्मी वाकई वापस आ गई हैं। अगर आपने ये कहानी दिल से महसूस की है, अगर आपके दिल में भी माँ के लिए मोहब्बत की लहर उठी है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी यहाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। उम्मी हमें भूख लगी है, वापस आ जाए। सिर्फ एक फरियाद नहीं, ये हर इस बच्चे की दुआ है जो मोहब्बत को मिट्टी में भी तलाश करता है। सब्सक्राइब करें ताकि हम और दिल छूने वाली कहानियां अब तक लाते रहे।